Good morning, children. Today in this video, I am going to teach you present perfect tense. Present perfect tense combines the present tense and the perfect aspect, which used to express an event that happened in the past and that has present consequences. Present perfect tense combines the present tense का और perfect aspect का. मीन ये टेंस हम वहाँ यूज़ करते हैं जो इवेंट, जो एक्शंस जो पास्ट में हुए हैं और उनके प्रेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस हो, प्रेजेंट रिजल्ट्स हो. सो दिस टेंस इज़ यूज टू शो लिंक बिटवीन प्रेजेंट एंड द पास्ट. ये टेंस हमें लिंक बताता है बिटवीन द प्रेजेंट एंड द पास्ट. कैसे? जैसे प्रेजेंट में तो वो उस एक्शंस के रिजल्ट्स हैं, लेकिन वो एक्शन कब हुआ हो? पास्ट में एक्शन हुआ और उसका प्रेजेंट कॉन्सिक्वेंस हो, तो वहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं. एंड इट इज़ कॉमनली यूज इन द एवरीडे कॉन्वर्सेशन में हम इसका यूज़ करते हैं. जस्ट एज इन द न्यूज़, ऑन द रेडियो, इवन राइटिंग लेटर्स, हम वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं. सो नाउ क्वेश्चन इज व्हेन टू यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कहाँ यूज़ करना चाहिए? We use the present perfect tense to talk about experience. जहाँ experience की बात हो, हम present perfect tense का यूज़ करना चाहिए. It is important if we have done it in our lives or not. ये important है कि हमने वो अपना एक्शन अपनी लाइफ पे किया है या नहीं किया है. It is not important when we did it. लेकिन ये important नहीं है कि हमने कब किया है. Just as example, I have been abroad 2 times. मैं abroad 2 बार जाकर आ चुका है. Mean to visit. Anna has never broken a leg. Have you ever eaten sushi? Mean the action which you have done in your life. Someone will ask you, have you done this? Have you visited there? So let's talk about the experience. And it is not important when he or she did it. And it is important if we have done it, कि हमने ये किया है in our life or not. Either we have done or we haven't done it. So to describe experiences, we always use ever and never. So we often use ever and never with the present perfect tense to talk about experience. So हम हमेशा present perfect tense में ever और never का use करते हैं experience को बताने के लिए. Ever or never adverb we always use in the present perfect tense. Let's move on. Second use of present perfect tense is used to talk about an action which started in the past, continues up to now. So ये action वहाँ पर भी use होता है जहाँ action तो past में start हो. An action that started in the past but still continuing in the future or present time. ये अभी भी present में continue हो. जैसे example है, I have been a teacher for more than 10 years. Mean मैंने अपना teaching profession start किया before 10 years and still it is continue. So to describe an action, ये action past में start हुआ 10 साल पहले और अभी तक continue है, तो उसको describe करने के लिए, उस action को लिखने के लिए हम हमेशा present perfect continuous tense का use करेंगे. We haven't seen Janine since Friday. हमने उसे अब तक नहीं देखा है, Janine को. How long have you been at the school? अगर आपसे कोई पूछा है कि आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वो कब से पढ़ रहे हैं, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन एट द स्कूल. तो मीन द एक्शन विच यू हैव टुक एडमिशन इन द स्कूल इन दैट पर्टिकुलर ईयर एंड स्टिल यू आर स्टडिंग इन दैट स्कूल. सो उस एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है. सो वी ऑफन यूज सिंस एंड फॉर टू से हाउ लॉन्ग द एक्शन हैज़ लास्टेड, कि वो एक्शन कब से और कब तक रहा है. तो वहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं. थर्ड यूज़ ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इट इज़ यूज टू टॉक अबाउट ए पास्ट एक्शन दैट हैज़ अ रिजल्ट इन द प्रेजेंट. तो ये हमें वहाँ पर भी यूज़ करते हैं कि जो एक्शंस, पास्ट एक्शंस जो हैं और उनका रिजल्ट प्रेजेंट में दिखाई दे. जैसे आई हैव लॉस्ट माई वॉलेट, कि मैंने अपना वॉलेट खो दिया है. सो ऑब्वियसली इन द प्रेजेंट आई डोंट हैव वॉलेट नाउ, आई डोंट हैव इट. सो रिजल्ट इज दैट आई डोंट हैव. Jimmy has gone to South Africa, so he isn't here now. Obviously, if someone gone outside, you will not get here. Have you finished your homework? Is your homework ready? तो आपका homework ready होना चाहिए. So that's the result will be happen and shown in the present time. वहाँ पर भी हम उसका यूज़ करते हैं. मीन जहाँ पर action तो past में हुआ हो, to talk about the action which is happened in the past and that has a result. लेकिन उसका result कहाँ पर होगा? present में. इसके
adverbs जो हम यूज़ करेंगे, we often use adverb just, already, yet with the present perfect tense for an action in the past with the result of the present. So जो action past में हो उनका result present में हो, वहाँ पर हम just, already, yet adverb का use करते हैं. How to form present perfect tense? So किस तरीके से present perfect tense को यूज़ करके sentences बनाते हैं. So we make the present perfect tense with the correct form of the auxiliary verb have, or has, and the third form mean past participle of the main verb. So we have to use have and has and the verb third form in the present perfect tense. हमें present perfect को सेंटेंसेस बनाने के लिए हैज़ और हैव का यूज़ करना होता है. साथ में पास्ट पार्टिसिपल वर्ब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को हमें यूज़ करना होता है. इफ टू फॉर्म द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द रेगुलर वर्ब वी ऐड ईडी इन द इन्फिनेटिव. तो हमें सिंपल रेगुलर वर्ब्स के साथ तो हम ईडी लगाकर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बना सकते हैं. सो जस्ट एज आई हैव एन एग्जाम्पल, आई हैव वर्क एज अ सेक्रेटरी फॉर 2 years. सो हैव इज़ यूज विद द आई एंड वर्क में आपने ed मीन वर्ब थर्ड फॉर्म यूज़ किया विच इज़ अ रेगुलर वर्ब, एंड विद द रेगुलर वर्ब यू कैन ऐड ed एज अ सेक्रेटरी फॉर 2 years. इसी तरीके से हमारे पास 2 sentences और हैं. हैव यू एवर विजिटेड द डिज्नीलैंड? द फिल्म हैजंट स्टार्टेड येट. सो दिस टाइप ऑफ सेंटेंस वी कैन मेक इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट पॉजिटिव मीन्स अफर्मेटिव स्ट्रक्चर सेंटेंसेस किस तरीके से बनाए जाते हैं. आई के साथ हमेशा हैव का यूज़ होगा. आई हैव बीन टू मॉस्को. वी ई शॉर्ट फॉर्म ऑफ द हैव, एंड कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यू कैन से यू हैव फिनिश्ड द एक्सरसाइज. हैव के साथ यू के साथ हैव का यूज़ होता है. ही शी इट सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, इनके साथ हमेशा हैज़ का यूज़ करेंगे. So he has just gone home. He has already had a holiday this year. He has broken. So these type of sentence we can make. Just as we and they are plural, so we will use have here. So we have seen this film before. They have bought a new car. So with the plural you have to use have, and with the singular you have to use has. Present perfect. Yes or no questions. So auxiliary verb has और have पहले यूज़ करते हैं. किसके? सब्जेक्ट्स के पहले. अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस या क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस बना रहे हैं तो हैज़ हैव को हमें पहले यूज़ करना है सब्जेक्ट के. सो हैव आई एवर डन इट बिफोर? हैव यू बीन टू द सिनेमा रिसेंटली? हैज़ ही वर्कड हियर लॉन्ग? हैज़ शी ऑलरेडी सेंड द टैक्स? हैज़ इट एवर बीन इन अ क्रश? हैव वी डन इट राइट? हैव दे गॉन होम येट? सो बिफोर subjects you will put helping verb, auxiliary verb, have or has according to the subjects. अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बना रहे हैं और हमने उसमें WH वर्ड यूज़ किया है तो पहले हमें WH वर्ड प्लेस करना है और उसके बाद हमें ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज़ करना है, हैज़ हैव का यूज़ करना है. सो जस्ट एज व्हाट हैव आई डन, मैंने क्या किया है. हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर, आप कितने टाइम से यहाँ पर हैं. हाउ मैनी टाइम हैज़ ही बीन मैरिड. व्हाट कंट्री हैज़ शी विजिटेड. वेयर हैज़ इट बीन. हाउ लॉन्ग हैव वी बीन टुगेदर. वेयर हैव दे वर्कड. सो हमें इंट्रोगेटिव इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस पूछने के लिए जब हम सेंटेंस बना रहे होते हैं WH वर्ड का यूज़ करते हुए तो हमें पहले WH वर्ड को प्लेस करना है और उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, देन वी हैव टू पुट सब्जेक्ट एंड देन आफ्टर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस प्रेडिकेट ऑफ द टेंस. Next adverb we will use in the present tense is already and yet. Already means that something happened earlier than we expected, and present perfect already usually goes after have or has before the main verb. तो before the main verb के पहले have के बाद आपको already यूज़ करना है. just as we have already had our breakfast. so यहाँ पे have helping verb के बाद आपको already या yet का यूज़ किया जाता है. When are you going to do your homework? But I have already done it. So before the main verb and after the auxiliary verb, you will use already. Do you want a cup of coffee? No thanks, I have already had.
वन, मैंने पहले ही ले ली है. सो येट मीन्स दैट समथिंग दैट वी एक्सपेक्टेड दैट हैज़ हैपन हैज़ंट हैपन, कि ऐसा हमने एक्सपेक्ट किया हो कि ऐसा हुआ है लेकिन नहीं हुआ हो. वी यूजुअली पुट इट द एंड ऑफ द सेंटेंस, हमें लास्ट में येट का यूज़ करते हैं. हैज़ द पोस्ट अराइव येट, हैव यू डन योर होमवर्क, नॉट येट, हैवंट यू गॉट रेडी. मीन नेगेटिव स्ट्रक्चर्स के साथ मोस्टली येट का यूज़ हुआ आता है. For and since, we use present perfect tense to talk about action which started in the past continue up to the present. So हम present perfect का tense का वहाँ पे भी यूज़ करते हैं जो action past में start हुआ है लेकिन continuous है present moment में. So we use for with the period of, for example, few days, for half an hour. Mean duration के लिए तो हम for का यूज़ करेंगे और point of time के लिए हम since का यूज़ करेंगे. Since last year, since June 8, since I met you. So since का पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फोर का ड्यूरेशन के लिए. जस्ट एज आई हैव एट दिस कंप्यूटर फॉर अबाउट अ ईयर, मतलब 1 साल से ड्यूरेशन बताई है तो वहाँ पे हमने फोर का यूज़ किया. इसी तरीके से हाउ लॉन्ग हैव यू बीन एट द स्कूल, आई हैवंट सीन जूलिया सिंस सेप्टेम्बर, मीन पॉइंट बता दिया उस टाइम से, तो वहाँ पर हमने सिंस का यूज़ किया. और ड्यूरेशन बताई फॉर अबाउट अ ईयर, 1 साल की, तो हमने फॉर का यूज़ किया. और टाइम बताया, पॉइंट बताया टाइम का, तो वहाँ पर हमने सिंस का यूज़ किया. So there are the times when we cannot use the present perfect tense. For example, you cannot use it with the specific expression of time that have already finished, such as the year, month, when I was a baby. So it can be used with the expression that are unspecific, जो specific नहीं हो. Just as I have lost my purse, we have seen this movie already, he has broken his leg, there has been an accident. So there are some examples which used to express an unfinished period of time. So importance of present tense की बात की जाए तो वहाँ पर ये एक्सपीरियंसेस के लिए बात होता है. व्हेन टॉकिंग अबाउट एक्सपीरियंसेस फ्रॉम द पास्ट, कि आपने पास्ट से क्या सीखा. अ चेंज और अ सिचुएशन दैट हैज़ हैपेंड इन द पास्ट बट स्टिल कंटिन्यू इन द प्रेजेंट मोमेंट. सो दिस टेंस इज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश ग्रामर का. सिंस इज डेमोन्स्ट्रेट दैट एक्शन और इवेंट्स इन द पास्ट हैव एन इफेक्ट ऑन द प्रेजेंट सिचुएशन. जो भी एक्शंस पास्ट में हों उनका प्रेजेंट सिचुएशन में बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो, वहाँ पर हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं. टुडे वी हैव कंप्लीटेड दिस टेंस. आई होप यू ऑल गॉट दिस मेन important points of this tense. Thanks for watching this video.